Hello students, a very warm welcome to you all in my class, in the class of Business Studies, class 12th, where we were dealing with the term 2 syllabus of uh, Business Studies, where we have dealing with the concept of function of management related to the directing and controlling, and later on we have to discuss the another chapter and revise the concept related to the financial management. Students, in the chapter of financial management, we will deal the various concept and importances of the financial management, and apart of that, we will also deal the various elements and decision that we will take while managing the finance. So first of all, we will deal the concept of financial management and let us know that what the financial management is. As you can see here, that the financial management word has been derived from two separate words, that is financial and management. And ultimately, to understand them both, we have to identify that what these two words denotes. When we talk about the word financial, that means the word financial something related with something related with finance, and the management means concept of managing the persons and resources. Means when we talk about the financial management, we have to identify that what the meaning of these two words from which the concept of financial management has been derived. When we talk about the word finance, it means something that related to finance, and when we talk about the management means concept of managing the persons or the resource for the accomplishment of some predefined goal. So integrating both concepts, we could identify that the managing of some finance is known as ultimately management of finance. Means we could say that the financial management can be defined as a management of finance of a business organization. Means when we talk about financial management, we are talking about the management of the finance or the financial resources that a business organization holding or possessing. Means अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने पास जो फाइनेंस और फाइनेंशियल रिसोर्सेज रखती है, उसके मैनेजमेंट की बात अगर हम करें, उसको किस तरीके से प्रॉपरली इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है, उसकी बात करें, एट दैट टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस. I would like to repeat the concept of management again, that the finance should be utilized in a effective and efficient manner. मतलब अगर हम किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज़ करने का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, यूज़ करने का प्रॉस्पेक्टस और पर्पस सोचते हैं, तो एट दैट टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट द बिजनेस फाइनेंस related management. Means management of business finance. Under the concept of management business finance, under the concept of financial management, we are also dealing about the decision related to effective use of decision related to
procurement and usage of fund, wherein which we identify that how the fund of the organization, how the finance of the organization will be raised or will be procured, and ultimately uh, we can say we could replace this word of procurement from the sources of the fund, sources and uses of fund। यानी अगर हम बात करें किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी फंड है उस फंड के सोर्सेज और यूजेस क्या होंगे, तो ऐसी कंडीशन में हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं। इट मीन्स द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज प्राइमरली कंसर्न विद द three different decision, where first one is financial decision, investment decision, and part of that we will also deal related to the dividend decision। Means when we talk about the concept of management, we are talking about the decisions related to the finance, the various decisions related to the investment, and some of the decision related to the dividend of the organization। मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो फंड है वो कहाँ से इकट्ठा करेगी, द सोर्सेज ऑफ द फंड, एंड कहाँ लगाएगी, द डिप्लॉयमेंट ऑफ द फंड, एंड अपार्ट ऑफ दैट जहाँ लगाएगी वहाँ से जो प्रॉफिट मिलेगा उस प्रॉफिट को अपने इन्वेस्टर्स के बीच कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ये सारी बातें हम अपने फाइनेंशियल डिसीजन और द डिसीजन रिलेटेड टू द फाइनेंशियल मैनेजमेंट में करते हैं। ठीक है, तो अगर हम कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें, अगर समअप करने की कोशिश करें, तो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को इस तरीके से समझ सकते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी टास्क होते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सारी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड डिसीजंस लिए जाते हैं, ताकि उन एक्टिविटीज़ और उन डिसीजंस के बेसिस पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों आ सके। ठीक है, और अल्टीमेटली इस इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के साथ हम अपने गोल को ज़्यादा ईजिली और ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी के साथ अचीव कर सकें। तो इस कंडीशन में जो डिसीजंस होते हैं, द डिसीजंस आर कैटेगराइज्ड अंडर 3 कैटेगरीज। That first one is financial decision, where we talk about the sources of the fund. Second one is investment decision, where we will talk about the investment or the deployment of the fund of the organization, and later on we will talk about the dividend decision. All these decisions, all these important decisions will taken by the organization at the time of the management of finance, and dealing all these concepts will be a part of financial management, and later on we will talk about these decisions individually, but before that we will discuss the various importances of the management of finance। इससे पहले कि हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में, इन फाइनेंशियल डिसीजन के बारे में जो है चर्चा करें, हम एक बार इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो इम्पॉर्टेंसेस है उनको समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हेल्प से ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या बेनिफिट होते हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ द फाइनेंस रिलेटेड इम्पॉर्टेंसेस। मीन्स लेट अस टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंसेस ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो लेट अस टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंसेस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या मेरिट्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, हम उनकी बात करें तो अल्टीमेटली वी कुड कैटेगराइज ऑल द इम्पॉर्टेंस रिलेटेड टू द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन द फॉलोइंग क्राइटेरिया। सो इट कुड बी कैटेगराइज अंडर फॉलोइंग कैटेगरी। दैट फर्स्ट वन इज with the help of financial management we could determine
the importances of, or we can say the composition of fixed assets and current assets. Some of the decisions are taken related to the current assets also, means the determination of current assets. Apart of that, we will also decide the funds short term and long term fund of the organization. Means under this concept we will determine the concept, the quantum of the fund that will be used and raised by the organization related to the long term and related to the short term. यानी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हेल्प से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म से रिलेटेड जो फंड होती हैं उनकी रेजिंग और उनकी होल्डिंग की डिसीजन मेकिंग करते हैं और ये अश्योर करते हैं कि दैट एनी काइंड ऑफ फंड, whether it may long term or it may short term, should not be reduced, should not be lacked by the organization. हमारी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी टाइप के फंड की कोई भी कमी किसी भी टाइम पे नहीं पड़नी चाहिए. जहां जब और जितने फंड की रिक्वायरमेंट है वहां तब और उतना फंड हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास सफिशिएंटली अवेलेबल हो, ये ऑब्जेक्टिव होता है हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का. So it is also important significance of the financial management that with the help of the financial management the organization decide the various composition of the fund related to the sources of this fund and related to the uses of such fund, when we talk about either it may long term or it may short term. And apart of that we also deal with the various items related to profit and loss account. Means when we talk about the financial management we also analyze the various content or the item related to the profit and loss account. प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड जो भी आइटम्स होते हैं हम उनकी एनालिसिस करते हैं, उनको समझते हैं कि किस तरीके से उनकी बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और उसके बेसिस पे हम बिजनेस की सेवरल डिसीजन मेकिंग करते हैं. तो आइए एक एक करके इस कॉन्सेप्ट और इस इम्पोर्टेंस को एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंसेस रिलेटेड टू दैट. As you can see, the various importances of the financial management are discussed over here, and the very first importance is the size and the composition of the fixed assets of the business. यानी बिजनेस के फिक्स असेट्स को किस तरीके से जो है ऑर्गेनाइजेशन को फ्रेम करना है और किस तरीके से उसकी डिटर्मिनेशन करनी है कि ऑर्गेनाइजेशन में कब कितना और कैसा फिक्स असेट्स होना चाहिए. इसकी डिसीज़न मेकिंग जो है हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हेल्प से एक बेटर और एक साउंड तरीके से कर पाते हैं. इसके अलावा अगर इसे एग्जांपल की बात करें तो हम कह सकते हैं कि अल्टीमेटली एक ऑर्गेनाइजेशन अपने फिक्स असेट्स को में जितना पैसा लगाना चाहती है उस पैसे की डिटर्मिनेशन कर लेती है, तो ऐसी कंडीशन में वो ये डिसाइड करती है कि कितने पैसे को उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन में ब्लॉक करके रखना है और कितने पैसे को उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रेगुलर एक्टिविटीज़ से रिलेटेड टास्क में यूटिलाइज करना है एज अ पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल. सपोज द ऑर्गेनाइजेशन इज डिसाइडिंग टू इन्वेस्ट अ सम ऑफ 100 करोड़, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने 100 करोड़ रुपए को एक फिक्स असेट्स में लगाना चाहती है. तो इसका मतलब ये है कि अल्टीमेटली
वो 100 करोड़ रुपए जो है उस असेट्स में ब्लॉक हो जाएंगे और अल्टीमेटली वो 100 करोड़ रुपए कहीं और किसी बिजनेस में नहीं लगाए जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फिक्स असेट्स की डिसीजन होती है तो उसमें फर्म ये डिसाइड करती है कि कितना पैसा उसे कब, कहाँ और कैसे लगाना है और अल्टीमेटली किस फिक्स असेट्स में वो कितना पैसा ब्लॉक करे ताकि उसकी जो रेगुलर एक्टिविटी से रिलेटेड नीड्स हैं वो नीड्स प्रॉपर फुलफ़िल भी हों और इसके अलावा उसकी फर्म के पास एक लॉन्ग टाइम तक एक फिक्स अमाउंट बनी रहे। Another important that we are talking about, that is the quantum of current asset and its breakup into cash as inventory, receivables, etc. Means यानी हमारी ऑर्गेनाइजेशन ये डिसाइड करती है कि कब उसे वर्किंग कैपिटल के रूप में कितना पैसा कहाँ रखना है और उस पैसे को जो है उस ऑर्गेनाइजेशन में वो कैसे यूज़ करेगी। अल्टीमेटली सपोज़ एक ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने करेंट असेट्स में इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ाना चाहती है तो इसका मतलब ये है कि अल्टीमेटली वो या तो अपने कैश बैलेंस को डिक्रीज़ करा रही है या तो ऑर्गेनाइजेशन की जो गुडविल है, क्रेडिट कैपेसिटी है, उसको यूटिलाइज़ करके विदाउट अफेक्टिंग द कैश वो अपने स्टॉक को, इन्वेंट्री को इंक्रीज़ कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द डिसीजन रिलेटेड टू द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हम जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में और ऑर्गेनाइजेशन जो एडिशनल फंड्स होते हैं, हमारे वर्किंग कैपिटल के पार्ट होते हैं, उनसे रिलेटेड डिसीजन मेकिंग करती है और ये डिसाइड करती है कि कब, कहाँ और कितना पैसा उसे कैसे लगाना है। मीन्स अंडर दिस कॉन्सेप्ट, under the concept of the financial management, the various amount or the contribution related to the long term and short term fund are also identified। यानी जब हम ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं तो फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कब, कितना और कैसा फंड होगा, वेदर व्हाट विल बी द कंट्रीब्यूशन ऑफ द long term in the total fund and what will be the contribution of short term in the total fund। and organization wanting to have more liquid assets would raise relatively more amount on long term basis। means अगर एक ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म फंड होल्ड करना चाहती है तो ऐसी कंडीशन में उसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म फंड के केस में लिक्विडिटी फर्म की डिस्टर्ब हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे फर्म को ये डिसाइड करना होता है कि उसे लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी में बैलेंस किस तरीके से बना के रखना है और इन दोनों में वो किसे ज़्यादा प्रेफर करेगा और किसकी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रखेगा। तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द fund related to the long term and short term finance is also identified under the case of financial management। and apart of that we also determine the breakup of long term finance into डेप्ट एंड इक्विटी। यानी लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो है उसकी डिसीजन भी हम उससे रिलेटेड भी ये डिसीजन मेकिंग करते हैं कि हमारी फर्म में कब कितना लॉन्ग टर्म फंड रहेगा और जो लॉन्ग टर्म फंड होगा उसमें इक्विटी और प्रेफरेंस का क्या क्या, इक्विटी और डेप्ट का क्या वेटेज होगा, यानी हमारी डेप्ट ज़्यादा होगी या इक्विटी ज़्यादा होगी। ऐसी कंडीशन में अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इक्विटी ज़्यादा रखते हैं इट मीन्स वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द ओनरशिप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिटवीन और अमंग द वेरियस पीपल and in that case the decision making power will be distributed and decentralized in various hands and the decision making process will delayed and democratic also। तो ऐसी कंडीशन में हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे कंट्रोल और जो पोजीशन है वो कितना ज़्यादा चाहिए और उस पोजीशन के बेसिस पे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे फर्दर प्लानिंग और फर्दर डिसीजन मेकिंग कैसे करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो डिसीजन मेकिंग होती है कि हमें कब कितना कैपिटल रखना है, ये भी फाइनेंशियल डिसीजन का एक पार्ट होता है। ये भी फाइनेंशियल डिसीजन से रिलेटेड एक टास्क होता है कि हम कोशिश करते हैं कि डिसाइड करें कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो कैपिटल हो रहा है
उसमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होगा या लॉन्ग टर्म कैपिटल ज़्यादा होगा, और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल ज़्यादा होगा तो उसमें शेयर की वैल्यू ज़्यादा होगी या डेब्ट कैपिटल की वैल्यू ज़्यादा होगी। क्योंकि अगर डेब्ट कैपिटल ज़्यादा होगा तो इसकी कंडीशन में हमारे फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन फर्म के ऊपर कंट्रोल हमारा बना रहेगा, क्योंकि जो ओनरशिप है वो हमारे ही पास रहेगी। जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं दैट आर इंटाइटल्ड टू गेट अ फिक्स पेमेंट only after the end of the time, but they are not entitled to disturb the decision related to the management of the organization। तो ऑर्गेनाइजेशन में कब कितना और कैसा कैपिटल होगा, इससे रिलेटेड डिसीज़न भी हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक पार्ट होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे मैनेजमेंट का एक और सिग्निफिकेंस की, दैट इज़ the analysis of the profit and loss item related to the analysis of the impact of the of such item on the profit and loss। यानी प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट एक्सपेंसेस और ऐसे ही जो आइटम्स होते हैं उनका प्रॉफिट एंड लॉस पे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसका डिसीजन मेकिंग हम अल्टीमेटली फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हेल्प से लेते हैं। यानी अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे हमने अभी भी बात की डेब्ट कैपिटल और इक्विटी कैपिटल की कंट्रीब्यूशन की, तो अगर हमारे पास डेब्ट कैपिटल ज़्यादा है तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास एक्सपेंस ज़्यादा होगा, और अगर इक्विटी कैपिटल ज़्यादा है तो ऐसी कंडीशन में हम डिविडेंड की पेमेंट ज़्यादा करेंगे। तो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये डिसीज़न लेना होता है हमें कि कब हमें कितना कैपिटल और कैपिटल का कितना प्रॉफिट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है और ऑर्गेनाइजेशन की फ्लो को किस तरीके से बनाए रखना है। Hope the concept and significance of the financial management are very much clear to you, and now we are able to define that what are the concept and what are the significance of the financial management. Let us revise all these concept again so that we could summarize the concept entire concept again. As a conclusion we could say that कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ऐसा मैनेजमेंट पार्ट है जिसमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है अल्टीमेटली ये डिसाइड करती है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो फंड है वो किस तरीके से कलेक्ट किया जाएगा, उसकी यूटिलाइजेशन कैसे होगी, और उससे जो भी प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को हम किस तरीके से उस इन्वेस्टर्स के बीच बांटेंगे जिन इन्वेस्टर्स से वो पेमेंट या वो कैपिटल रेज किया गया है। और उसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि अल्टीमेटली आगे के लिए ऑर्गेनाइजेशन में कितना कैपिटल बनाए रखना है और रेगुलर रूटीन में कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि उस स्मूथ फंक्शनिंग को भी हम मेंटेन करें, जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में रेगुलर फ्लो ऑफ फंड बना रहे। सो अगर हम इम्पोर्टेंसेस की बात करें तो इम्पोर्टेंसेस में हमने कहा कि डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ फिक्स असेट्स, वर्किंग कैपिटल की और फिक्स असेट्स की कंपोजिशन को हम डिसाइड करते हैं कि हमें एट अ टाइम कितना फिक्स असेट्स चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी कैपिटल को फिक्स असेट्स में डिप्लॉय कर रहे हैं, यानी इतना पैसा जितना पैसा हमने फिक्स कैपिटल में लगा रखा है उतना पैसा हम अपने फॉर्म्स में लॉक करके रख रहे हैं, और ऐसी कंडीशन में उस पैसे को हम वर्किंग कैपिटल के रूप में एक लंबे समय तक यूज नहीं कर पाएंगे। सो दैट वी हैव टू डिसाइड दैट व्हाट शुड बी द अमाउंट दैट द ऑर्गेनाइजेशन शुड होल्ड while operating the business of the firm। और इसके अलावा हमने बात की कि जो फिक्स असेट्स है उसके अलावा हमारे कैपिटल से कितने करंट असेट्स की यूटिलाइजेशन होगी, इसकी डिटर्मिनेशन भी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हेल्प से करते हैं। और साथ ही साथ ये भी डिसाइड करते हैं कि जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है एक लंबे समय तक काम करेगी तो उसकी लंबे समय तक काम करने के लिए जो फंड चाहिए उसमें से कितना फंड वो लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज़ के लिए होल्ड करेगी और शॉर्ट टर्म एक्टिविटीज़ के लिए कितना फंड वो यूटिलाइज करेगी। इस डिसीजन मेकिंग की जो एक्टिविटी है वो भी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ही करते हैं। और साथ ही साथ हम ये एनालाइज करते हैं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसकी आइटम्स की इम्पैक्ट जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस पे और हमारे कैपिटल पे किस हद तक पड़ रहा है, ताकि ये डिसाइड कर सके कि हम आगे इस आइटम को रिमूव, रिड्यूस या इंक्रीज करें या ना करें। सो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ द financial management and the related importance are very much clear to you,
and we will deal in the next class the various decisions that are taken in the financial management by the organization to ensure the smooth running and the easier accomplishment of the goal that has been decided by the organization. And later on we will deal the various affecting factor related to these decisions and identify and ensure that these decisions should not interrupt it and disturbed by the various hindrance and hurdles that took place in the organization's function. So let us talk and meet again related to the discussion of the affecting factors and the various decisions of financial management. Till then, take care and goodbye.